accounting standard? 13. You remember? Yeah. Let us revise what we had done in previous lecture and then we will proceed further. Correct? First point we discussed. Now what's that? You were there in previous lecture. Baki sabko say he was not there. First lecture, correct? Yeah. So we learned certain theory in previous lecture. We will revise and we'll proceed further. Don't worry, you will come to know what we have done in previous lecture. Yeah. We'll proceed further with new part. What do you mean by investment? Come on. Investments are assets held by an enterprise to earn dividend income, interest income, rental income, capital appreciation or any other benefit. याद है? लो, AS13 does not cover any income, but AS13 covers the asset on which these incomes are earned. Means AS13 is talking about investments, not the income on investments. Do you agree with this? Yeah? Okay. आगे बढ़ेंगे. Then we talked about point number 2, that was we should think from, in this chapter we will not think from only company's point of view or only firm point of view. We have to think from investors point of view. Correct? Point number 3. In this chapter we will learn accounting of, come on, short-term investment. Correct? And that is short-term investment in securities. गोल्ड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो अकाउंटिंग नहीं करने वाले हम लोग इधर. करेक्ट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग करेंगे. नाउ सिक्योरिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फिक्स्ड इनकम बेरिंग, वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज. फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज मतलब डेट एंड रेट्स आर फिक्स्ड. वेरिएबल में डेट एंड रेट्स आर नॉट फिक्स्ड. डू यू अग्री विद दिस? ओके. फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज का एग्जांपल investment in debentures, government bonds, government securities, etc. and variable का investment in equity shares. इसके सम्स है हमारे पास, हम सब सॉल्व करेंगे. करें या? उसके बाद में भी started with fixed income bearing securities. fixed income bearing securities में first accounting सीखा था हमने. बोलो क्या क्या transactions possible है? बोलो बरोबर है. परचेज, सेल एंड इंटरेस्ट. कम ऑन. व्हेनेवर वी विल परचेज इन्वेस्टमेंट, व्हाट वी विल पे? परफेक्ट. वी विल पे कॉस्ट एंड वी विल पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कौन से पीरियड का? फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. एंड व्हेनेवर वी विल सेल इन्वेस्टमेंट, वी विल रिसीव व्हाट? सेलिंग प्राइस प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कौन से पीरियड का? अगेन सेम, फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. याद है ये सब? या? एंड थर्ड वन, इंटरेस्ट रिसीव. इंटरेस्ट रिसीव किसके पास से? इश्यूअर के पास से. किसके पास से? इश्यूअर के पास से. कभी देंगे इंटरेस्ट? ड्यू डेट को वो लोग इंटरेस्ट देंगे. सो वी विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. व्हाट एंट्री वी विल पास? कम ऑन. Bank account debit to interest account, and at the end of the year interest will be transferred to P&L. And whenever sale will be there, we need to calculate what? Profit or loss and transfer to P&L. याद है? पक्का? उसके बाद में हमने सीखा था ट्रांजैक्शन प्राइस. You know there are 2 transaction price possible. कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट क्या होता है? कंबाइंड इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट और सेलिंग प्राइस प्लस इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं है. दैट कुड बी आइदर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस. याद आ रहा है? या? ओके. उसके बाद में हमने सीखा था वैल्यूएशन, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. बोलो. एज पर AS13 इन्वेस्टमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. व्हिच 2? करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड long-term investment. What do you mean by current investments? Intended to be held for less than 12 months. Intention है कम 12 महीने से कम पीरियड के लिए रखना. And if intention is to keep it for more than 12 months, then it is long-term investment. ये intention कभी का? On which date intention? At the date of acquisition. जो दिन शेयर खरीदा, जो दिन इन्वेस्टमेंट परचेज किया, वो दिन का इंटेंशन से डिसाइड होगा ये करंट है कि लॉन्ग टर्म.
तुमको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा है या? चलो आगे बढ़े. नाउ वैल्यूएशन बोलो. करंट इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट. एक क्वेश्चन पूछो, एक मिनट. करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट, इनिशियली वैल्यूड एट. इनिशियली मतलब जब भी खरीदेंगे तभी किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे. बैलेंस शीट डेट को कैसे वैल्यू करना है उसको बोलते हैं वैल्यूएशन. क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और fair value whichever is lower. Closing short term investment, current investment, cost or fair value whichever is lower. Long term investment कैसे वैल्यू करेंगे? Always at cost unless the reduction is other than temporary. टेम्पररी रिडक्शन को इग्नोर करने का लॉन्ग टर्म में. अदर देन टेम्पररी, डोंट से परमानेंट. अदर देन टेम्पररी रिडक्शन है, इट शुड बी कंसिडर्ड एंड इट शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल. गया के गया? ये गया कि गया? गया पक्का. पहला वाला. हेलो ए तुम ऐसा सोता है रे, घर से उठ के आता है, क्या बोलता है मालूम है? चल उठ जा, उधर जाके सोएंगे. अदो भाई लिटरली आंख खुला रखे. हाँ बरोबर છે, તમે બોલતા જાઓ સર, તમને આવડે છે. लिटरली सो रहा है. रिवाइज किया नहीं किया? पक्का. ओके यहां तक किया था हमने वैल्यूएशन तक. उसके बाद में हम ये फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी में क्या बनाएंगे? एक अकाउंट बनाएंगे. देयर इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बट सिर्फ इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट बोथ? बोथ. करेक्ट. कॉलम्स क्या थे? डेट पर्टिकुलर्स. फिर फेस वैल्यू इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कॉलम. सेकेंड बोलो बराबर है. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कॉलम इज इंटरेस्ट अकाउंट. एंड थर्ड कॉस्ट कॉलम, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट. याद है? मतलब वो अकाउंट में एक्चुअली दो अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोथ. So this is what we learned in previous lecture. I am assuming you all understood this. Now today we will start with question solving. Theory हमने complete किया था fixed income bearing securities का. Correct? Now we'll go for क्वेश्चन नंबर 1. करेक्ट. साथ में रहना, जोड़े रहिए. करेक्ट. रीड क्वेश्चन नंबर 1. 1 घंटा लगेगा. एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. एग्जाम में 15 मिनट है, 20 मिनट है. रीड क्वेश्चन नंबर 1. स्टार्ट करो. मिस्टर ए has made investment in 12% debentures of X Limited. बोलो मिस्टर ए का. इन्वेस्टर. हम लोग को अकाउंटिंग किसके बुक में करना है? इन्वेस्टर. उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है? 12% डिबेंचर्स इन एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड कौन है? इश्यूअर. 12% क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. डू यू अग्री विद दिस? इंटरेस्ट डेट्स क्या है? 31st March and 30th September. Can I say half yearly interest है? Yeah. From the following details, prepare what? Come on. Investment account बनाने का. सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला, डेफिनेटली इट विल बी इन कॉलमनर फॉर्म. उसके साथ इंटरेस्ट अकाउंट भी बनेगा. करेक्ट. इन द बुक्स ऑफ, कम ऑन, फॉर द ईयर 2012 बोला मतलब कैलेंडर ईयर है. 12-13 बोलेगा फाइनेंशियल ईयर रहेगा. करेक्ट. 1 जनवरी 2012 परचेज 300 डिबेंचर्स. समझा कि नहीं समझा? 300 डिबेंचर्स क्या भाव पे परचेज किया? 96 एक्स इंटरेस्ट. इसमें इंटरेस्ट नहीं है बट पे तो करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट. तो व्हाट इज 96 देन? ओनली कॉस्ट. इसमें इंटरेस्ट नहीं है. 1 मार्च परचेज व्हाट? 200 debentures at
99 कम इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें कॉस्ट भी है इंटरेस्ट भी है, बाइफरकेट करना पड़ेगा, कॉस्ट विल गो इन कॉस्ट कॉलम, इंटरेस्ट विल गो इन इंटरेस्ट कॉलम. अंडरस्टूड. नेक्स्ट 1st August सोल्ड 100 डिबेंचर है 98 एक्स इंटरेस्ट. सो अगेन इट इज एक्स इंटरेस्ट, सेल किया है 100 डिबेंचर्स. डाउट है मेरे को इधर, ये 100 कौन सा वाला बेचा? हंड्रेड डिबेंचर सोल्ड 98 में. So whenever investment is sold, we need to calculate profit or loss. How to get profit or loss? We will compare selling price with cost price. But ये 100 डिबेंचर कौन से वाले हैं, तो मैं कॉस्ट कैसे लूँ? ये 96 वाले हैं कि 99 वाले हैं? हाँ, मैं समझा नहीं. तो प्राइस तो नहीं, डिबेंचर तो सेम ही ऑफ कोर्स. ओ एक सेकेंड, अगर दो तीन कंपनी के डिबेंचर होते तो एक अकाउंट नहीं बनता, फिर दो तीन अकाउंट बनाते. वी आर प्रिपेयरिंग ओनली 12% डिबेंचर इन एक्स लिमिटेड अकाउंट. बट माय क्वेश्चन इज, whenever sale will be made, we will determine profit or loss. How to get profit or loss? We will compare selling price with cost price. Now what is the cost of this 100 debenture sold? क्या कॉस्ट क्या लूँ? सेलिंग प्राइस 98 एक्स इंटरेस्ट दिया है, इसका कॉस्ट क्या 96 लूँ कि 99 लूँ? तो डिपेंड्स ना किस में से बेचा है. मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं. दिस 100 इज सोल्ड आउट ऑफ व्हाट? डिबेंचर बेचते हैं तो किधर से बेचे? ओके, वैसा रहता है, लॉस होना ही नहीं चाहिए मतलब. और 99 इज कम इंटरेस्ट नो बेटा, नहीं 99 इज कम इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट हटा देंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा. अजम्पशन लेंगे. क्या अजम्पशन? मतलब वी विल अज्यूम कि 100 डिबेंचर इज सोल्ड आउट ऑफ लॉट नंबर 1, दैट इज 300. व्हाट अजम्पशन यू आर मेकिंग हियर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यू आर अज्यूमिंग FIFO मेथड. सुना है नहीं सुना है? हाँ? किधर सुना है? इन्वेंट्रीज, वेरी गुड. AS2 inventories permits FIFO method, whereas AS13 accounting for investment does not permit FIFO method for determination of cost. Entire stock market, entire investment market, money market, capital market talks about weighted average method. मार्केट गिरता है तो भी यही लैंग्वेज रहता है ना कि एवरेज कर ही लो, कम में शेयर खरीदो, एवरेज नीचे आ जाता है. पूरा मार्केट एवरेज पे चलता है. AS13 ऑल्सो रिकमेंड्स वेटेड एवरेज मेथड. सो AS13 के हिसाब से इफ मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड, वी विल ऑलवेज फॉलो वेटेड एवरेज मेथड. सर क्वेश्चन में अगर FIFO बोला है तो हाँ, देन डोंट क्वेश्चन द क्वेश्चन, फॉलो द क्वेश्चन. वी विल गो फॉर FIFO मेथड. है ऐसा एग्जाम करवाऊंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इन FIFO. बिकॉज यू नेवर नो, एग्जाम में कभी पूछ लिया FIFO मेथड तो यू शुड बी अवेयर ऑफ. इफ यू आर सेइंग कि सर FIFO फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट इज सोल्ड आउट ऑफ लॉट नंबर 1. एंड इफ वी विल से कि वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे, देन इट इज नॉट सोल्ड आउट ऑफ 300 डिबेंचर, इट इज नॉट सोल्ड आउट ऑफ 200 डिबेंचर्स, इट इज सोल्ड आउट ऑफ 500 डिबेंचर्स. वेटेड एवरेज में वी हैव टू कंसीडर ऑल डिबेंचर्स टुगेदर. कुछ समझा कि नहीं समझा? एक सम को क्यों 1 घंटा लगेगा वो समझा, या आगे बढ़ते हैं. 1st December 2012 परचेज 200 डिबेंचर्स एट व्हाट? कम ऑन, कुछ बोला नहीं है. कम के एक्स. परचेज 200 डिबेंचर्स एट 97. कम इंटरेस्ट के एक्स. बोलो. एक्स इंटरेस्ट.
Here it is based on opinion. Come on, yeah. X interest. X interest. Black t-shirt. तो वो ऐसा एग्जाम में आ गया तो तू छोड़ के आएगा कि करके आएगा? छोड़ के करके आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा। व्हाई डू यू फील कि जो सिखाते हैं वही एग्जाम में आता है? ये सीए का एग्जाम है, 12th स्टैंडर्ड थोड़ी है। तो इधर कुछ नया आया तो दिमाग तो चलाएगा ना, कि नहीं चलाएगा? चलाएगा कि नहीं चलाएगा? चलाएगा ना यार। कि नहीं करवाया करके छोड़ के आएगा तो 30 मार्क का पेपर तेरा ऐसे ही जाएगा। हाँ, वो 30 का बाहर से कुछ आया नया दिखेगा ना उधर बेटा, फिर बोलेगा नहीं ये करवाया नहीं है तो नोट लिख के आने का, दिस इज नॉट डन इन द क्लास, सो वी विल नॉट सॉल्व, इट इज नॉट गिवन इन योर स्टडी मटेरियल ऑल्सो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी नहीं है तो अभी ये हम नहीं करेंगे। ऐसा करने वाला है नहीं ना। तो तू आंसर देगा बेटा, दो ही ऑप्शन है, एमसीक्यू भी नहीं है वो, चार भी नहीं है, दो ही है। बोल, एक्स के कम। तू मुझे छेड़ेगा तो मैं छोड़ेगा नहीं। हाँ बेटा, तू नया है मैं नहीं। बोल क्या लेगा? एक्स के कम। व्हाट डू यू लाइक? वो हाँ वही करना है। ये लोग ने क्या, तेरे को क्या लगता है लॉजिक से बोला है? तू भी वही करना। तू दूसरा तुक्का, तेरे को यू वांटेड कि सर थोड़ा जाग जाए, सर कुछ अभी इतना सीरियसली पढ़ा रहे हैं, कुछ मस्ती करें, इसीलिए तूने मस्त टेढ़ा आंसर दिया मेरे को। बोल बोल अभी। एक्स इंटरेस्ट लेगा, वेरी गुड। इधर अभी तेरे को भी खेलना है मेरे से। बोल बोल क्या? हाँ बोलना। एक्स। ओके ओके ठीक है, वो ही लाइक्स एक्स ऐसा मतलब। उधर एक्स इंटरेस्ट या ओके, सुनो इधर, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल ऑलवेज अज्यूम इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब 97 में इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट है। Correct? We will assume that that will be the better option, better assumption. Even institute is assuming the same. Agreed? Have you understood the question? Yeah? चलो क्वेश्चन का फॉर्मेट करते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स डू यू रिमेंबर? 5 कॉलम वन साइड, 5 कॉलम अदर साइड, डेट पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। क्या करेगा बोलो? सिंगल पेज, डबल पेज? मैनेज कर पाएगा? आई डोंट माइंड, मतलब बहुत जन कैसे करते हैं, डबल पेज लेते हैं, एक साइड डेबिट दूसरे साइड पे क्रेडिट। सिंगल पेज में करेंगे या राइट डाउन? हाफ पेज का अकाउंट बनाओ। हाफ पेज से थोड़ा बड़ा बनाना, ज़्यादा नहीं।
स्टार्ट करें. See, after drawing this format, we will go for one timeline. This is a part of working note. It is optional. If you want, you can do that. If you are super intelligent, you can go directly. Doesn't make any difference. It is little bit, I can say 5 minutes time consuming, but it will give you accurate answer. Mistake nahi hoga. Otherwise, you may commit error here. Bolo dates. What is our timeline? मतलब क्या? Arranging the transactions in chronological order. Correct? 1st January 2012. बोलो क्या किया है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज 300 डिवेंचर 96 एक्सेंट. फिर 1 मार्च को क्या किया है? हाउ मेनी? क्या भाव पे? 99 है ना? कमेंट. उसके बाद क्या आएगा? इसीलिए तो टाइमलाइन बना रहा हूं मैं. ये वेकेशन में याद आएगा, इंटरेस्ट देना भूल गए. 31st मार्च को इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड. 31st मार्च को इंटरेस्ट वी विल रिसीव फ्रॉम इश्यूअर. सो ये डेट ड्यू डेट है, वी हैव टू कंसिडर. अग्रीड? नेक्स्ट बोलो. कौन से डेट को? 1 अगस्त. वापस क्या आएगा? फिर 1 दिसंबर परचेज. हाउ मेनी? Here everybody. And 31st December is our year ending. So we will close it up. And year ending को market value दिया है कि नहीं दिया है? year end का market price दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है. Otherwise we would have gone for valuation of closing investment. Here market value is not given, so no valuation required. Yes, ma'am. Yeah. No, see, intention is to dispose of within 12 months. See, this is acquired on 1st January. We wanted to sell it off in current year, but we have not sold. We have not yet sold. Out of maybe I can say total debentures, we have sold only 100. Intention is important, not what actually happened. Intention is to keep it for less than 12 months. Correct? Done? And all these transactions are done. Now we have to just do accounting of the same. Nothing hidden. Correct? What you are asking, you know, कि सर शॉर्ट टर्म है तो सारे डिवेंचर सेल हो जाने चाहिए. एटलीस्ट फर्स्ट वाला तो सेल होना ही चाहिए क्योंकि 12 मंथ्स हो गया. बट इट इज नॉट हिडन. इफ दे विल गिव यू देन वी हैव टू कंसिडर. करेक्ट? शैल आई प्रोसीड गाइस? डन? टाइमलाइन बनाया? नहीं बनाया. स्टार्ट करें. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चलो क्विकली. परचेज. बोलो जर्नल एंट्री क्या है? कम ऑन. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इन शॉर्ट डेबिट साइड पे आएगा व्हेनेवर इन्वेस्टमेंट इज अक्वायर्ड. डेट बोलो.
January 1 क्या एंट्री आएगा? परचेज का इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डाउट है? हाँ, व्हाट इज द फेस वैल्यू? 300 डिबेंचर्स हैं, nothing is given, then face value of each debenture is 100 rupees. So 300 into 100, 30,000. That is the face value. बोलो इधर तक कोई डाउट? 100 रुपीज फेस वैल्यू क्लियर एवरीबडी? कभी कभी देते हैं एग्जाम में 50 रुपीज फेस वैल्यू, 20 रुपीज फेस वैल्यू, सो बी केयरफुल इन दैट सिनेरियो। ओके, अभी कैसे फिलअप करने का? तो एक एक कॉलम फिलअप करने का। पहले फेस वैल्यू कॉलम, फिर सेकंड क्या है? अभी इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट का कभी कभी सेपरेट वर्किंग नोट करते हैं, तो हर इंटरेस्ट का सेपरेट वर्किंग करेंगे तो 8-10 वर्किंग हो जाएंगे। तो व्हाट वी प्रेफर, ये क्वेश्चन आएगा कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए, मैक्सिमम 6 to 8 मार्क्स समझो। हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड इन द एग्जाम? 1 मार्क 2 मिनट्स। 8 मार्क के लिए आया, 15-16 मिनट में कंप्लीट करना है। अभी हर चीज़ का वर्किंग करने जाएंगे तो इट विल बी लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग एंड सोल्यूशन भी लेंदी हो जाएंगे। तो व्हाट वी प्रिफर, वी विल पुट ब्रैकेट एंड इंटरेस्ट का वर्किंग इधर ही करेंगे। हाँ, फिर जब भी सेल होगा तभी प्रॉफिट और लॉस डेफिनेटली सेपरेट वर्किंग करेंगे। ब्रोकरेज एंड कमीशन अगर क्वेश्चन में दिया है तो डेफिनेटली सेपरेट वर्किंग करेंगे, अदरवाइज वी विल पुट इट इन ब्रैकेट। चलो कम ऑन, ब्रैकेट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कोई बताएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता किसको? फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 30,000 इंटू 12% इंटू, नहीं अभी क्या सोचने का इंटरेस्ट के पीरियड के लिए? व्हाट वाज द लास्ट ड्यू डेट? लास्ट ड्यू डेट क्या था? 30th सितंबर। सो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी तो फर्स्ट है तो ये मंथ नहीं आएगा, मतलब मैं इनके पास से डिबेंचर परचेस कर रहा हूँ 1 जन को, तो इनको लास्ट में इंटरेस्ट 30th सितंबर को मिला था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे उनको पे करना पड़ेगा, फिर कंपनी मुझे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दे देगा। डू यू अग्री विद दिस? सो इंटरेस्ट कितना मंथ्स? 3 मंथ्स। क्या सोचने का? फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर? आप लोग ने कॉलम्स बनाया है ना, कॉलम्स ड्रॉ करना कंपलसरी है बॉस। इधर आंसर दो, कितना आ रहा है? Have you understood interest? Next, what is the amount? 96x इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 96, कैसे नहीं लाता? 28,800। एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है? एक्स, अब एक्स इंटरेस्ट मतलब ये कॉस्ट है और हमें कॉस्ट ही चाहिए, सो 28,800। क्लियर यहाँ पर? हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू रिकॉर्ड परचेज? सिंपल। आगे बढ़ो। फेस वैल्यू कॉलम इज जस्ट 10। हाँ, नहीं तो बहुत जन क्या करते हैं 30,000 प्लस 900, 3900, ऐसा सब नहीं है, सब अलग अलग कॉलम है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। फेस वैल्यू इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट कॉलम इज इंटरेस्ट अकाउंट एंड कॉस्ट कॉलम इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं, चलो व्हाट इज सेकंड, कम ऑन। अगेन परचेज 200 डिबेंचर्स, March 1। आप लोग सिंगल पेज में बना रहे हो ना, तो 3/4 पेज बनाने का, क्योंकि ये ब्रैकेट्स और ये सब आएगा, थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा। उसके नीचे टाइमलाइन बना देने का, फर्स्ट पेज उतना ही यूज करने का। डन? शैल वी प्रोसीड? 20,000 क्लियर? अभी क्या कैलकुलेट करेंगे? एक एक कॉलम फिलअप करने का। 20,000 इंटू 12% इंटू हाउ मेनी मंथ्स?
मंथ्स के लिए क्या सोचना है इंटरेस्ट के? व्हाट वाज द लास्ट इंटरेस्ट ड्यू डेट? लास्ट ड्यू डेट वाज 30th सितंबर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब. मार्च नहीं आएगा. करेक्ट. सो 5 months. कितना आ रहा है? प्राइस चेक करो. 99 कम इंटरेस्ट. 200 इंटू 99. 19 800. ये कम इंटरेस्ट है. इसमें से 1000 माइनस कर दो. 18. ठीक है. बोलो. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये कैलकुलेशन बताने का तो यू कैन शो. तो फिर और एक ब्रैकेट आएगा. बताओ चाहिए? मैनेजेबल है या? हाँ, पूछ के देख. क्या देख रहेगा तो देखिए. पूरा कैलकुलेशन ही तो है. फोन है ना तेरे पास? फोन पे यूज कर. ऑफ कोर्स डांटते हैं. मैं भी डांटता है. देख रहेगा तो. और कौन नहीं लाया? आप भी नहीं लाया? नहीं, तीनों नहीं लाए. कितना? 4 कैल्सी थोड़ी रहेगा. हमारा कैल्सी का बिजनेस नहीं है. हाँ, देख लेके आ जा रहेगा तो. आज बैग में डाल देना फिर कैल्सी. चलो एनीवे, ये आगे बढ़े. वी आर डन विथ परचेसेस. नाउ विल प्रोसीड फर्दर विथ नेक्स्ट. इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट ड्यू डेट का इंटरेस्ट है. करेक्ट. इश्यूअर के पास से रिसीव करेंगे. एंट्री बोलो. इंटरेस्ट रिसीव. बैंक अकाउंट डेबिट टू. सो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो क्रेडिट साइड पे आएंगे. किस पे कैलकुलेट करेंगे? तो नीचे से लाया ऐसा लग रहा है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. बोलो. इंटरेस्ट ड्यू डेट को इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होएगा? फर्स्ट फेस वैल्यू के कॉस्ट. इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. करेक्ट. ड्यू डेट को इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे? सो ड्यू डेट को इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू. अरे यार, नया लैंग्वेज सर. कितना इरिटेट होती है रे. रिजल्ट जल्दी आना चाहिए. थोड़ा सीरियसनेस आ जाएगा. नहीं. आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू मतलब क्या? रिमेनिंग फेस वैल्यू. हाउ मेनी डिबेंचर्स वी हैव? 300 हमने परचेज किया था, प्लस 200 हमने परचेज किया, 500. तो 30,000 प्लस 20,000 टोटल 50,000 फेस वैल्यू को आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू बोलेंगे. लैंग्वेज जो भी सुनेंगे समझेंगे तो आगे तुम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि सेल के बाद भी इंटरेस्ट हो सकता है. तो जो बचा हुआ फेस वैल्यू रहेगा उस पे आएगा. इसीलिए लैंग्वेज क्या बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू, रिमेनिंग फेस वैल्यू. क्यों बोला समझा बेटा? या वो इरिटेट होने लगी. अरे यार. एनीवेज 50,000. ए बोलो जल्दी. इनटू इनटू 3,000. 50,000 का 12%, 6,000. हाँ, 3,000. Done everybody? Have you understood 3 transactions? अभी नेक्स्ट योर फेवरेट वन क्या है? बोलो. सेल करना. 1 अगस्त सेल. एंट्री बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट. मतलब इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में आएगा. डेट बोलो.
फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे इनटू हाउ मेनी मंथ्स। नहीं, वापस सोचने का क्या, लास्ट ड्यू डेट क्या था, तो अभी लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था, 31 मार्च को मिला था। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आएगा क्या, नहीं। सो 4/12, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा 400। चेक करो कैलसी वाले, चेक तो करो, नया कैलसी वाले 2 बार चेक करो। क्या आएगा ना नेक्स्ट लेक्चर, बेटा आते रहना। ऑफकोर्स जाने ही नहीं देंगे हम, लोग आते हैं अपनी मर्जी से, जाते हैं हमारे, करें। चलो 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? 10,000 क्लियर, 400 क्लियर। अभी मेरे को बोलो सेलिंग प्राइस कितना था? 98, 98 एक्स इंटरेस्ट, हमें एक्स इंटरेस्ट ही चाहिए ना। सो इनटू 98, 9,800 इज सेलिंग प्राइस। डू यू अग्री विद दिस? डाउट है मेरे को पूछो, डाउट आ रहा है उधर, आएगा। प्रॉफिट लॉस के टाइम क्या आएगा ना बेटा, जब भी सेल होगा, पहले सेल रिकॉर्ड तो करो। ये सेल रिकॉर्ड किया, करेक्ट। अभी प्रॉफिट और लॉस आएगा, क्यों आएगा, सुनना है प्रॉफिट और लॉस? सुनना है, हाँ बोल। हाँ, कौन सा कॉलम है ये? नहीं नहीं, कौन सा कॉलम है ये? कॉलम कौन सा है, उसमें क्या लिखा आपने, ये वो क्या है? वो क्या है? हम लोग बेचते हैं ना, सेल करते हैं ना, तो कॉस्ट नहीं मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। ये सेलिंग प्राइस है। तुम लोग इंटर स्टार्ट हो चुका है मानो, सीरियस ही नहीं है, अलग ही मोड में। वेकेशन चाले थे सर, हैरान नहीं करता। एक तो सुबह सुबह बुलाया हम लोग को। इंटर चालू हो चुका है, ये चैप्टर सिलेबस में है, करे। ये 9,800 क्या है, वापस बोलो जरा। सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस कौन से कॉलम में लिखा? कॉस्ट कॉलम में। मतलब ये सेलिंग प्राइस में या तो प्रॉफिट रहेगा या तो लॉस रहेगा। अभी ये सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करके उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के टाइम पे कैसे फाइंड करना है, तभी अपना वेटेड एवरेज मेथड आएगा। करेक्ट, पहले सेल रिकॉर्ड करने का, फिर प्रॉफिट और लॉस। स्टेप नंबर 1 सेल, स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस। आ जाओ वर्किंग नोट 1। वर्किंग 1, अभी देखो ये सब में एक सेल है, आगे जाएंगे 2 सेल आएंगे, और फिर ब्रोकरेज आएगा, स्टेम चार्जेस आएगा, सब आएगा। फिर आगे फीफो भी, फीफो मेथड से भी करेंगे। तो वी शुड नो कि कहाँ पे कौन से मेथड अप्लाई होते हैं। करेक्ट, हेडिंग कैलकुलेशन ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। बोलो हाउ टू गेट प्रॉफिट और लॉस। ये ध्यान दो तुम लोग, कैसे फाइंड करना है बोलो। वेटेड एवरेज से प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलेगा, वेटेड एवरेज से कॉस्ट मिलेगा। दैट इज कॉस्ट फॉर्मूला। We will compare, to get profit or loss we will compare what? Selling price with cost price. कौन सा selling price? तुम मेरी भावनाएं नहीं समझ रहे हो, वेवलेंथ मैच ही नहीं हुआ है अब तक। मैं पूछता कुछ और है, तुम कुछ और टेंजेंट में आंसर देते हो, है ना। कौन सा सेलिंग प्राइस? एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ। अभी वो एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे फाइंड करने का, उसके लिए फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब मेथड्स। प्रॉफिट और लॉस के लिए मेथड नहीं है। फीफो वेटेड एवरेज का भी काम आता है। चलो अभी थोड़ा और 2 मिनट बात करो, चलेगा? तो इन्वेंट्री से क्या है, करेक्ट। ई यूनिट्स
if units are interchangeable, इंटरचेंजेबल लैंग्वेज समझता है, हमने 100 डिबेंचर परचेस किए, 200 डिबेंचर परचेस किए, 300 डिबेंचर परचेस किए, अभी एक दूसरे में मिक्स हो गए, इंटरचेंज हो गए, उसमें से 200 बेचे, अभी कौन से 200 बेचे, कैन यू आइडेंटिफाई? नो। तो मैं वो बेचेगा तो उसका मैं कॉस्ट कैसे फाइंड करूं प्रॉफिट और लॉस के लिए? तो वहां पे अजम्पशंस आते हैं, वो अजम्पशन को बोलते हैं कॉस्ट फॉर्मूला। दीज आर कॉस्ट फॉर्मूले। कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड्स हैं, फीफो, वेटेड एवरेज, इन्वेंट्री में फीफो, वेटेड एवरेज, रिटेल प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, सब AS2 ने परमिट किया है। ये मेथड से वैल्यूएशन, ये मेथड से कॉस्ट डिटरमिनेशन इज अलाउड। AS13 ने बोला है वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करो, पूरा स्टॉक मार्केट वेटेड एवरेज पे ही चलता है। पर ये मेथड प्रॉफिट और लॉस के लिए है कि मेथड कॉस्ट फाइंड करने के लिए? कॉस्ट फाइंड करने के लिए, ये समझना जरूरी है। दीज आर कॉस्ट फॉर्मूले। ये क्लियर? हेलो, बोलो। एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस कितना था? ये था ना 9800। किससे कंपेयर करेंगे बेटा? अभी एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट कौन से मेथड से फाइंड करेंगे? करें, मेथड समझा कहां अप्लाई करना है? चलो अभी मेरे को आंसर दो। हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड? आंसर दो। 100 यूनिट सेल किया, ये 100 यूनिट्स है ना, फेस वैल्यू 10,000 है। ये 100 यूनिट सेल किया, किस में से सेल किया? तो ये 300 लॉट 1 मैंने परचेस किया था, इसमें से 100 बेचा कि 200 में से 100 बेचा कि 500 में से 100 बेचा? इफ यू विल अज्यूम कि सर नहीं 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 300 में से ये 100 बेचा है, देन यू आर अज्यूमिंग FIFO मेथड। इफ यू विल से ना ना सर लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये 200 अभी अभी आया ना, उसमें से 100 बेचा, देन इट इज LIFO मेथड। अब बोलेगा नो सर, AS13 बोलता है 300 में से भी नहीं, मतलब लॉट 1 में से भी नहीं, लॉट 2 में से भी नहीं, टोटल 500 में से हमने बेचा, दैट इज वेटेड एवरेज। पहले ये समझा कि नहीं समझा? तो अभी क्या करना है, बहुत सिंपल है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि 100 यूनिट्स जो हमने सेल किया उसका सेलिंग प्राइस वॉज 98, उसका कॉस्ट कितना है? तो मैं क्या फाइंड करेगा, ये 100 यूनिट्स किधर से बेचा? 500 में से बेचा, तो ये 500 का कॉस्ट कितना है? 500 का कॉस्ट इतना है, तो 100 का कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 9520, 280 का प्रॉफिट है। एनीवे तुमको मेथड समझा क्या? कैलकुलेटर मशीन है वो, तो तुम कैसे भी फाइंड कर सकता है। इफ यू नो द मेथोडोलॉजी यू कैन गेट द आंसर। 500 यूनिट्स में से 100 बेचा है, तो 500 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है? इतना है, तो 100 का कितना? क्लियर? पक्का? देखो मैं वर्किंग करवा रहा हूं, यहां पे मैं एक वर्किंग करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप फेस वैल्यू के जगह पे यूनिट्स भी लिख सकते हैं, करेक्ट? फेस वैल्यू बोलो, लॉट नंबर 1 में हाउ मेनी यूनिट्स वी अक्वायर्ड, जिसका फेस वैल्यू 30,000 था, उसका कॉस्ट कितना था? 28,800। इसका कॉस्ट कितना था? 18,800। करेक्ट है?
बोलो, इसमें से 100 बेचा, इसका कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बट मेथड समझा क्या? सी, कैलकुलेटर वाला काम तो कोई भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट इज हाउ टू डिटरमाइन आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू एंड आउटस्टैंडिंग कॉस्ट। ये आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू है 50,000। जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा सेल आएगा ना, तभी ये सेल भी कंसिडर करना पड़ता है। तो आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू, हाउ मेनी डिबेंचर्स वी हैव एज ऑन द डेट ऑफ सेल, तो 500 डिबेंचर। उसका व्हाट वाज द कॉस्ट? दिस वाज द कॉस्ट। 100 डिबेंचर सोल्ड, व्हाट इज द कॉस्ट? करेक्ट, मल्टीप्लाई, बोलो 95। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कम है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कम है? क्या मिलेगा? कितना? हाँ, चलेगा। बट एवरी टाइम यू कैन नॉट आइडेंटिफाई परसेंटेज ना, इसलिए दिस इज बेटर मेथड। करेक्ट, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। यूनिट्स भी ले सकते हैं, 500 के लिए इतना, तो 100 के लिए कितना, यू कैन डू दैट। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। क्लियर? ये वेटेड एवरेज समझा? तो जब भी सेल आएगा तभी तभी ये वर्किंग करेंगे। अभी आंसर दो। प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है, इन शॉर्ट ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट किधर ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल के क्रेडिट में। एंट्री फ्रेम करो। पीएनएल डेबिट होगा कि पीएनएल क्रेडिट? पीएनएल क्रेडिट होगा, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, सो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड पे आएगा। आपको फुल फॉर्म लिखने का, मेरा एग्जाम हो चुका है, आपका बाकी है। शॉर्ट फॉर्म इज नॉट अलाउड, कहां पे भी नहीं लिखना। समझा एवरीबडी? मैनेजेबल। ये 280 इधर लिखा है, इसका मीनिंग बोलो ना। हाँ, बट ये किया क्या हमने? कहने से ये 9800 का सेलिंग प्राइस था। क्या था ये? बराबर है। कौन से कॉलम में लिखा था? कॉस्ट कॉलम में मैंने क्या लिख दिया था? सेलिंग प्राइस लिख दिया था। एक्चुअली कॉस्ट कॉलम में तो कॉस्ट लिखना चाहिए। करेक्ट। अभी मेरे को बोलो, ये 100 डिबेंचर जो हमने बेचा, उसका कॉस्ट कितना था? 9520। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 9520 क्रेडिट होना चाहिए था, बट मैंने 9800 क्रेडिट कर दिया, इसीलिए 280 मैंने डेबिट किया। आप नेट चेक करो, 9520 ही आया। कि गया कि गया? करेक्ट। दूसरा लॉजिक, 9800 सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड किया है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अब ये प्रॉफिट पीएनएल में जाना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया है, तो उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट से निकालो और पीएनएल में लेके जाओ। अभी इन्वेस्टमेंट से निकाल के पीएनएल में कैसे लेके जाएंगे? तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में पड़ा है,
तो डेबिट में लिखो और निकाल दो इन्वेस्टमेंट से, एनपीएनएल के क्रेडिट में लेके जाओ। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो इन शॉर्ट ये 100 यूनिट बेचा, उसका कॉस्ट कितना है? 9520। हमने 9800 इधर रिकॉर्ड किया एंड 280 इधर रिकॉर्ड किया, 9520 इनडायरेक्टली रिकॉर्ड हो गया। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? मैनेजेबल, डन। वी आर डन विथ 1 अगस्त। 30 सितंबर। देखो टाइमलाइन नहीं बनाएंगे ना तो अटक जाएंगे। अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ, वो ऑलवेज सोचना पड़ेगा। अभी टाइमलाइन रेडी है, 2-5 मिनट जाता है टाइमलाइन बनाने में, डजंट मैटर, बट आंसर करेक्ट आएगा। एक्यूरेसी मैटर्स एट द एंड। 90 मार्क्स का भी एक्यूरेट पेपर लिखा ना तो भी 80-85 मिलता है। सर 100 मार्क्स का पूरा पेपर लिखा बट सर टैली नहीं हुआ है कुछ, डजंट मैटर। मतलब आई कैन से इट विल नॉट मेक सेंस। यू कैन गेट 60 ऑड, नॉट 80 प्लस, बट 90 का एक्यूरेट पेपर लिखा यू कैन गेट 80 प्लस, 85 प्लस। कौन है? हाँ तो मतलब ऐसा पहले हम कॉलम सिर्फ फील करते हैं, बाद में ड्रॉ करते हैं, ऐसा करते हो आप लोग? अरे बाप रे बाप। ओके ओके, मेरे से कितना डिप्लोमेसी यार, हद हो गई। एनीवेज, सी आई कैन से दैट at this level they check concepts. Format will not matter a lot, but if you will get full marks, if you will get full marks or maybe around 90 आ रहा है so they can deduct 2 to 3 marks for that format. But if you will get around 40, 38, so they will give you grace marks, don't worry. अभी 2 दिन पहले ही इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम किसी को फेल नहीं करते 2-3 मार्क्स के लिए। एग्रीगेट, हाँ मैथ्स में भी एग्रीगेट में बोलता है 200 का टारगेट चाहिए, यू रिक्वायर 200, 197 198 वाले को तो पास ही कर देते एग्रीगेट में। और इंडिविजुअल पेपर में 1-2 मार्क्स से वो फेल होता रहेगा, हम उसको पास कर देते। अब भी इंस्टीट्यूट ने बोला, और ये हमको पहले से पता था। दे मैनेज द रिजल्ट्स, बोलना नहीं चाहिए बट दे आर मैनेजिंग द रिजल्ट्स। वन ऑफ आवर स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है मेरे पास, सितंबर बैच वाला है, लॉ में उसको कितना आया था ऑनर? ऑफ कोर्स नहीं पता रहेगा। ही गॉट 33.5, 33.5। उसको 6 मार्क ग्रेस दिया, 39.5 और 40 करके पास कर दिया, क्योंकि उसको एग्रीगेट क्लियर हो रहा था, सिर्फ उसका लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया था। बाकी टोटल 200 नहीं, बहुत ज़्यादा था, 240 अराउंड, फाउंडेशन का ही बोर्ड है। सो हियर एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। ज़्यादा सोचने का नहीं, बिकॉज कभी कभी कैलकुलेशन एरर्स का भी दे कैन डिडक्ट 5 मार्क्स, यू नेवर नो। फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया है, पेपर बहुत डिफिकल्ट है, फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया है, दे कैन गिव यू फुल मार्क्स। इट इज ऑल अबाउट के ओवरऑल सिनेरियो क्या है, दे वांट टू मैनेज द रिजल्ट्स एंड दीज आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। और वो हो जाने के बाद तो कभी नहीं सोचने का, इट इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड बिकॉज यू एंटर्ड इन सी एंटर, करेक्ट? एनीवे आगे बढ़ते हैं। अभी ड्रॉ करती है कि अभी भी नहीं करती है? हो गया ना, मतलब किया, मतलब क्वेश्चन होने के बाद के पहले ना। थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर गुड नेम? चलो एनीवे आगे बढ़े हम लोग। सुन इधर, मतलब बेस्ट पार्ट इज व्हाट यू नो, हंसते ही रहता है, एकदम स्माइली फेस, कुछ भी मैं कमेंट पास करेगा हंसते, मन में कुछ और चलते रहेगा और हंसेगा। बोल अभी क्या शर्म आ रहा है? अनूप सर को पूछना पड़ेगा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? सो वी आर डन विथ सेल। हम बढ़ते हैं इंटरेस्ट। 30 सितंबर इंटरेस्ट, बोलो क्रेडिट साइड पे आएगा,
एंट्री बोलो इंटरेस्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो क्रेडिट में सितंबर 30 बाय बैंक अकाउंट। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ड्यू डेट वाला इंटरेस्ट है। किस पे कैलकुलेट होता है? आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू। आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू चेक करो, फेस वैल्यू कितना है ओपनिंग की? ये परचेज 30,000, ये 20,000, टोटल 50,000 हुआ। 50 में से कुछ सेल हुआ है क्या? 10,000 का सेल हुआ है। सो वी हैव 40,000 लेफ्ट विथ अस, तो 40,000 इज आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू ऑन दैट 12% विल कम इनटू हाउ मेनी मंथ्स? कैन एनीबॉडी? 6 मंथ्स। बोलो, ये 6 मंथ्स ही आएगा ना? ड्यू डेट को तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो 6 महीना ही आएगा। करेक्ट। नहीं नहीं पता चला तो सोचो लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था? सो इट वाज 31st मार्च, नाउ इट इज 30th सितंबर, सो 6 मंथ्स इंटरेस्ट। बोलो कितना आ रहा है? मैनेजेबल। व्हाट इज नेक्स्ट? परचेज 1st December, टू। बहुत जन है ना इधर टू परचेस लिख के आते हैं एग्जाम में। दैट इज सुपर नॉनसेंस। इट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसीलिए एंट्रीज करवाता हूं मैं। डायरेक्ट करने चाहेंगे, बहुत जन क्या सिखाते हैं? डेबिट में परचेस आएगा, क्रेडिट में इंटरेस्ट, क्रेडिट में सेल, हो गया, स्टोरी इज ओवर। अरे बट लिखना क्या है? एंट्रीज करेंगे तो लिखने का समझेगा, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक। परचेज 200 डिबेंचर, $20,000 into 12% into हाउ मेनी मंथ्स? मंथ्स के लिए क्या सोचने का? लास्ट इंटरेस्ट कभी हुआ था? लास्ट ड्यू डेट वाज 30th सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा क्या? नहीं। सो 2/12 कितना आ रहा है? क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, अभी मल्टीप्लाई करो 200 इंटू 97, 19,400 एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट? चेक कर लो। डन एवरीबॉडी? वी आर डन विथ परचेज। मतलब कैन आई से 3 ट्रांजैक्शन पॉसिबल है? परचेज, सेल एंड इंटरेस्ट। परचेज रिकॉर्ड करना बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट भी बहुत सिंपल है, जो भी है वो सेल है, क्योंकि सेल में प्रॉफिट और लॉस आएगा। सेल में पहले सेल रिकॉर्ड करो, देन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन विल बी द टास्क इन ऑल द क्वेश्चंस। दैट्स इट। क्लोज करेंगे 31st December। बस आराम से मेरे साथ रहना। क्लोज कैसे करने का? दोनों साइड पे 4-4 लाइन मिनिमम चाहिए, 4 लाइन्स रिक्वायर्ड। टोटल करो, फेस वैल्यू 70,000, एक एक कॉलम क्लोज करेंगे। बैलेंस इधर सब समझाते हैं। इंस्टीट्यूट है ना, डिबेंचर वाले सम में फेस वैल्यू लिखता है, शेयर्स वाले सम में शेयर्स कॉलम बनाता है, नंबर ऑफ शेयर्स। हम भी वही करेंगे। यहां तक समझा? अभी ध्यान देना, समथिंग न्यू। डन विद दिस?
विच कॉलम इज क्लोज? फेस वैल्यू। अभी इंटरेस्ट का बात करना। कैन एनीबडी? इंटरेस्ट इज अवर इनकम और एक्सपेंस? इन दिस क्वेश्चन इट इज इनकम और एक्सपेंस? इनकम। कहाँ ट्रांसफर होगा? विच इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू P&L? इंटरेस्ट रिसीव के इंटरेस्ट अर्न्ड। मतलब इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे P&L में जाएगा कि रिसिट बेसिस पे P&L में जाएगा? P&L में जाता है। P&L में क्या लिखते हो? क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट रिसीव लिखते हो, उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग करते हो कि नहीं करते हो? अक्रूड इंटरेस्ट कभी रहेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो उसमें ऐड करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। इंटरेस्ट P&L, कोई भी आइटम P&L में अक्रूवल बेसिस पे जाता है। तो माय क्वेश्चन इज कि ये 60,000 के फेस वैल्यू वाला जो डिबेंचर है एट द एंड ऑफ द ईयर, इस पे लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला? 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं देख लो इधर। क्या बोलते हैं उसको? अक्रूड इंटरेस्ट। हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स आएगा ना? डाउट मेरे को पूछो, पूछ। कौन सा बेटा? कौन सा 20? हाँ, ऑब्वियसली ये जो मैंने दिसंबर में लिया उस पर मैंने 2 महीने का इंटरेस्ट तो पे कर दिया। करेक्ट। 1 महीने का तो मेरा है ना, तो वो 3 महीने का क्रेडिट करूंगा तो 2 महीने का डेबिट, तो 1 महीने का हो जाएगा। कितना बोलो? 1800। अभी यू कैन क्लोज इंटरेस्ट कॉलम, क्लोज करो। क्रेडिट टोटल विल बी मोर बिकॉज इट इज इनकम। कितना आ रहा है? 5300 बैलेंस है। टोटल कितना है? 3400, 500, 7600। एंड डिफरेंस बाय क्लियर। समझा? अभी फाइनल कॉलम क्लोज करो, टोटल बोलो। 2 बैलेंस
ये 57,480 क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू दिया रहता तो ये कॉस्ट के साथ कंपेयर करते एंड विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते। दिस इज क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, whereas market value is not given, we are assuming cost is lower, so investment will be valued at 57,480 only. कुछ समझा कि नहीं समझा? अभी ये इन्वेस्टमेंट जाएगा किधर? ये 60,000 कहाँ जाएगा? हाँ, सो बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर शॉर्ट टर्म, उसमें अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 57,480 एसेट साइड पे। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लिखा है ना, उसके नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में पर्टिकुलर्स नहीं, एसेट में फेस वैल्यू 60,000, जस्ट एन इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रोवाइड, एंड इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर होगा, दैट्स इट। ये क्वेश्चन समझाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एक और पॉइंट, ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? सो ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट करंट ईयर का क्लोजिंग है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट बनेगा। डू यू अग्री विद दिस? अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होएगा, एंड आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, outstanding and prepaid will be carried forward to the next year, that is why they come in balance sheet। तो ये करंट ईयर का क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग आएगा। अब ये मैंने क्यों बोला कि फिर कोई भी सम में अगर ओपनिंग बैलेंस आया है इन्वेस्टमेंट का तो उसमें अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग भी हो सकता है। ये हम टू चेक, क्या चेक करने का? लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था, दैट इज द वे वी हैव टू थिंक। क्लियर? That's it. This is the end of which question? Come on. हुआ ना? अराउंड बना। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड क्वेश्चन। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, रीड एंड थिंक दिस क्वेश्चन। No, in this chapter they have not yet asked journal entries, but if they will ask then you should know na, I have given you the journal entries. Mr. A purchased on 1st March 2022, क्या लिखा है ये? ₹24,000 5% भारत डिबेंचर स्टॉक एट 90 कम इंटरेस्ट। समझा कुछ? मतलब कितना डिबेंचर परचेज किया? 240। ये 24,000 फेस वैल्यू है क्योंकि ₹24,000 दिया। समझाइए? 5% भारत डिबेंचर स्टॉक एट 90 कम इंटरेस्ट, मैनेजेबल, interest payable on 31st March and 30th September every year, stamp and expenses on purchase amounted to 20 and brokerage 2% was charged। परचेस के टाइम पे हम क्या करते हैं? एक्सपेंस का क्या करते हैं? ऐड, और सेल के टाइम पे लेस करते हैं। क्यों ऐसा? परचेस के टाइम पे ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि परचेस के टाइम पे हम अमाउंट पे करते हैं सेलर को एंड ब्रोकरेज पे करते हैं ब्रोकर को, दोनों पे होता है इसीलिए ऐड होता है। सेल के टाइम पे हम अमाउंट रिसीव करते हैं बायर के पास से एंड ब्रोकरेज पे करते हैं। तो एक रिसिप्ट है, एक पेमेंट है, इसीलिए माइनस होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? परचेज के टाइम पे ऐड करेंगे, सेल के टाइम पे लेस करेंगे। Interest for the half year was received on the due date. Okay, 1st September, ₹10,000 of the stock was sold at 92x interest, less brokerage 2%. समझा कि नहीं समझा?
30th September, rupees 8,000 debenture stock was purchased at 91x interest plus brokerage at 2%, charges 10 rupees. ये क्या चार्जेस क्या होते हैं? स्टैम्प चार्जेस, यू नो स्टैम्प ड्यूटी सुना है? नहीं सुना? प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। वैसे पहले हम लोग ऐसे डिबेंचर्स एंड शेयर्स परचेज करते थे ना, तो उस पर स्टैम्प चार्जेस पे करना पड़ता था। इन शॉर्ट इट वाज टैक्स। गवर्नमेंट को हमने रेवेन्यू दिया। क्लियर? एक मिनट। तो ये स्टैम्प चार्जेस देखा आपने, सिर्फ परचेस में दिया, सेल में नहीं। स्टैम्प चार्जेस पे कौन करता है? टैक्स पे कौन करता है? कोई भी ट्रांजैक्शन में बायर पे करता है। आज अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज करता हूं तो स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करेगा? बायर पे करेगा। इसलिए परचेज किया है तभी स्टैम्प चार्जेस है, सेल पे स्टैम्प चार्जेस नहीं है। क्यों बायर पे करेगा? स्टैम्प चार्जेस का मतलब क्या होता है मालूम है? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हम हमारा वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जिसके नाम पे था उसके नाम से निकाल के हमारे नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो किसको इंटरेस्ट है वो करने में? बायर को। मुझे चाहिए कि ये डिबेंचर मेरे नाम पे होना चाहिए, तो मुझे गवर्नमेंट के पास जाके स्टैम्प चार्जेस पे करना पड़ेगा एंड मेरे नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी पे क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे नाम पे वो वे स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं। क्यों? बेचने में इंटरेस्ट है, बेचने में इंटरेस्ट है। पैसा आ गया, बड़ो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी पड़ा है, उसको क्या फर्क पड़ा? तो अच्छा है ना, पैसा भी आ गया और मेरे ही नाम पे पड़ा है। बायर को इंटरेस्ट है, पैसा दे दिया अभी हमारा नाम पर कर। सो बायर विल ट्रांसफर। और सेलर, सी इफ आई एम सेलिंग माई प्रॉपर्टी, मैं क्या बोलेगा? 2 करोड़ रुपया। अभी 2 करोड़ में क्या स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड रहेगा? नहीं ना, 2 करोड़ तो मेरे को दे, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को दे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। Logical? Yeah. So stamp charges will come only in case of buying the investment, not selling the investment. आगे 1 दिसंबर को वापस क्या हुआ? 6,000 rupees stock was sold at 94 कम इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज 2%। ये क्या दिया है? मार्केट प्राइस दिया है ईयर एंड का, तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन। करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू किसके होता है? fair value whichever is lower, so 92. Show bought, come on, for the year ended 31st December 2022. सच बोलो, समझा क्या? पक्का? फॉर्मेट ड्रॉ करो। हम्म 3/4 तो लगेगा। 3/4 पेज करो, नीचे टाइमलाइन ड्रॉ कर देने का। दोनों एक पेज पे आएगा ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा।
स्टार्ट करें, शैल वी? लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. 1 मार्च को क्या किया हमने? परचेज किया 1 मार्च 2022. at 90 कम इंटरेस्ट. और उसमें क्या इंक्लूड है? स्टैम्प एंड एक्सपेंसेस. कितना ब्रोकरेज? करेक्ट. सेकेंड ट्रांजैक्शन 1 मार्च हो गया. 31 मार्च we will receive interest. After 31st March we will have 1st September. थर्टियथ सितंबर को इंटरेस्ट भी है एंड परचेज भी है. पहले क्या? पहले इंटरेस्ट के पहले परचेज? बोलो, लॉजिकली बोलो, जरा सोचो ना. ऑफ कोर्स इंटरेस्ट फिक्स्ड है, फिक्स डेट पे ही है. ओके, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो. 30th सितंबर को हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया. 30th सितंबर इंटरेस्ट ड्यू डेट भी, तो 30th सितंबर को हमने परचेज कभी किया रहेगा? ऐसा कैन आई से ड्यूरिंग द डे परचेज सेल हुआ रहेगा? ऐसा मॉर्निंग से लेके 3:30 तक मार्केट चालू रहता है, वो पीरियड में डिबेंचर परचेज सेल हुआ रहेगा. और इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पे होगा? तो वो ड्यू डेट पे जो क्लोजिंग डिबेंचर्स रहेगा उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. इंटरेस्ट पूरे दिन के डिबेंचर पे थोड़ी होता है यार. 30th सितंबर को इवनिंग में जो भी डिबेंचर होल्डर्स रहेंगे, दोज डिबेंचर होल्डर्स विल गेट इंटरेस्ट. 30th सितंबर इज इंटरेस्ट डेट, मतलब 30th सितंबर को जिसके जिसके पास डिबेंचर है उसको मिलेगा? नहीं, 30th सितंबर के क्लोजिंग एंड में किसके पास डिबेंचर्स है, दैट डिबेंचर होल्डर इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट. तो अभी मेरे को आंसर दो, पहले परचेज सेल हुआ रहेगा कि पहले इंटरेस्ट हुआ रहेगा? ऑब्वियसली परचेज सेल इज अ ड्यूरिंग द डे ट्रांजैक्शन. इंटरेस्ट इज एन इवेंट. टर्मिनेशन पे इंटरेस्ट होता है. 30th सितंबर को इवनिंग में जिसके पास डिबेंचर्स है उसको इंटरेस्ट मिलेगा. 30th सितंबर को ओके कैसे देगा फिर तुम लोग के हिसाब से? पहले तुम इंटरेस्ट दे देगा, मतलब 30th सितंबर को मॉर्निंग में जिसके पास डिबेंचर है उसको इंटरेस्ट देगा, फिर परचेज सेल करेगा, ऐसे करते हैं? आंसर इज नो.
30th सितंबर इज अ इंटरेस्ट डेट, मतलब वो दिन क्लोजिंग एंड में किसके पास डिबेंचर्स हैं उसको इंटरेस्ट मिलता है। पहले क्या करना चाहिए, ट्रांजैक्शन पहले करना चाहिए। इट हैज टू बी परचेज एंड सेल फर्स्ट एंड देन इंटरेस्ट। डू यू अग्री विद दिस? या वी विल गो फॉर परचेज। कितना? क्लियर? पक्का? और फिर क्या करेंगे? 30 सितंबर के इवनिंग में इंटरेस्ट। जो भी नया पॉइंट आते जा रहा है ना, अब टॉप मार्जिन में स्टिक मार्क करके लिख लेंगे कि transaction and interest both are on same date, then transaction should be considered first and then interest. स्टार्ट करें एवरीबॉडी। 30th सितंबर के बाद क्या है? 1st दिसंबर सेल। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अभी 31st दिसंबर है, क्या करेंगे? क्लोजिंग करेंगे, मार्केट प्राइस दिया है 92, सो वैल्यूएशन करना चाहिए। टाइमलाइन क्लियर है क्या? ये टाइमलाइन बहुत मैटर करेगा। तुम डायरेक्ट क्वेश्चन करने गए ना, कुछ भूल जाएंगे। टाइमलाइन रहेगा तो सीक्वेंस याद रहेगा। अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट हैबिट। सी, दिस इज द वे आई गिव यू वर्किंग नोट, सो यू विल हैव दिस हैबिट ओनली। अभी मेरे को सॉल्व करने में तो डायरेक्ट भी कर सकता है क्योंकि उतना प्रैक्टिस हो चुका है। आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। यू कैन गो डायरेक्टली इन एग्जाम, डजंट मैटर, बट एरर नहीं करना बस। क्लियर? सीख रहे हैं ना, तभी सिस्टमेटिकली सीखने का। देन यू कैन मॉडिफाई योर सोल्यूशन एज पर द रिक्वायरमेंट इन द एग्जाम। ये लेवल पे कैसा है, प्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर मच बिकॉज पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंटेशन चेंज होते रहते हैं। आपका प्रेजेंटेशन अलग रहेगा, सदर्न इंडिया का अलग रहता है, नॉर्थ वाले अलग करते हैं। सो प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फाइनल कॉन्सेप्ट एंड फाइनल आंसर मैटर है। करेक्ट, पर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है यार। ये इरिटेट नहीं होने का, कितना भड़कती है, भड़कने का नहीं है ना। अरे इतना क्यों गुस्सा कर रही है?
चलो एनीवे हम आगे बढ़े या विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन 1st March 2022 first transaction 2022 can I say in this question we have calendar year yes 2022 March 1 purchase 240 debentures at 90 परचेस 240 डिबेंचर परचेस किया है डेबिट में आएगा टू 40 डिबेंचर 240 इंटू 100 24,000 का फेस वैल्यू है करेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 24,000 इंटू 5% हाउ मेनी मंथ्स क्या सोचने का लास्ट इंटरेस्ट रेट क्या था 30th सितंबर सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी कितना हाँ कितना अमाउंट 500 क्लियर अभी कॉस्ट फाइंड करना है ब्रोकरेज भी है स्टैम्प चार्जेस भी है तो वर्किंग बना we will have separate working for this calculation of total x interest cost is on स्टार्ट करो अभी ये वर्किंग स्टार्ट कहाँ से करने का जो प्राइस क्वेश्चन में दिया रहेगा वहां से स्टार्ट करने का क्वेश्चन में कौन सा प्राइस दिया है वहां से स्टार्ट करने का कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस 240 इंटू 19 करो मल्टीप्लाई ऑलवेज रिमेंबर सबसे पहले ब्रोकरेज कंसिडर करने का परचेस में ब्रोकरेज ऐड होएगा फिर लेस होगा ब्रोकरेज कितना परसेंट अभी ब्रोकरेज कैलकुलेट किससे होगा मैं ऑप्शन देता हूँ फेस वैल्यू कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कॉस्ट ब्रोकरेज कैलकुलेट किस पे करेंगे 2% किस पे कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज योर ओपिनियन सर आपका ओपिनियन फेस वैल्यू है ना ब्लैक टी शर्ट हियर
face value. Listing 1, face value, x interest, neighbor, x interest. ओके, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना। मैं रिलायंस का इक्विटी शेयर परचेज किया, लेटेस्ट से मार्केट ओपन हो चुका है, मैं फ़ोन करेगा, मैं बोलेगा 100 शेयर्स परचेज करो रिलायंस का, मार्केट प्राइस इज अराउंड 1300 रुपीज, करेक्ट, एंड फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। मेरा एक्सिस बैंक में डीमैट अकाउंट है, तो मैं एक्सिस वाले को फ़ोन किया, मैंने शेयर परचेज कर लिया। अभी एक्सिस बैंक वाला मेरे को ब्रोकरेज लगाएगा, डू यू अग्री विद दिस? किस नहीं, 10 रुपये पे कि 1300, फेस वैल्यू पे कि ट्रांजैक्शन प्राइस पे? तो फेस वैल्यू इज रूल्ड आउट, डू यू अग्री विद दिस? पक्का? फेस वैल्यू विल नॉट बी योर आंसर, बिकॉज ब्रोकरेज कभी भी ट्रांजैक्शन प्राइस पे होता है। फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, मार्केट में एमआरएफ का भाव देखो 1.5 लाख रुपए का शेयर है, ब्रोकरेज किस पे किया? 10 रुपये पे लगाएगा। इट हैज टू बी ऑन विच प्राइस? ट्रांजैक्शन प्राइस, करेक्ट या? दूसरा एग्जांपल देता हूं, फ्लैट लेने गए ब्रोकर के थ्रू, पुराना बिल्डिंग है, 15 साल पहले वो बिल्डिंग में 1 करोड़ का फ्लैट था, ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू 1 करोड़, करेक्ट। आज वही फ्लैट 2 करोड़ में बिक रहा है, तो हम 2 करोड़ में बेच रहे हैं ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकरेज किस पे लगेगा? ट्रांजैक्शन प्राइस, क्या प्राइस पे दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो प्राइस पे ब्रोकरेज लगता है। क्लियर या? चलो अभी ध्यान से सुनना। तो फेस वैल्यू इज रूल्ड आउट। अभी दूसरा ऑप्शन क्या था आप लोग का? एक्स इंटरेस्ट। अभी उस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने एक फ्लैट देखा है, परचेज कर रहा हूँ ब्रोकर के थ्रू, नेकेड फ्लैट है, मतलब कोई इंटीरियर नहीं किया हुआ है, उसका प्राइस है 1 करोड़ 50 लाख। तो मैंने वो फ्लैट अगर मैं परचेज करेगा तो ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी 1 करोड़ 50 लाख और ब्रोकरेज 1 करोड़ 50 लाख पे लगेगा। डू यू अग्री विद दिस? अभी वो जो फ्लैट देखा ना मैंने, उसके बाजू वाला ही सेम साइज का फ्लैट बट इंटीरियर किया हुआ है, उसका प्राइस है 1 करोड़ 70 लाख। अभी बोलो, ये फ्लैट अगर परचेज करता हूं, इंटीरियर फुल्ली डिजाइन फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, तो ब्रोकरेज किस पे लगेगा? 1 करोड़ 70 लाख पे लगेगा। ट्रांजैक्शन प्राइस पे ब्रोकरेज होता है, दो पार्टी के बीच में जो भी प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ उस पे ब्रोकरेज होता है। यू कैन नॉट से सर वो 20 लाख रुपया है ना, फर्नीचर का है, उस पे ब्रोकरेज क्यों दूं? ये सब नहीं होता है। दो पार्टी के बीच में जो भी भाव डिसाइड हुआ उसके ऊपर ब्रोकर ब्रोकरेज लेता है। So brokerage will not come on face value, that is totally ruled out. But brokerage will not come on X interest also. Brokerage will come on transaction price, and that transaction price can be X interest, it can be कम interest. वो ट्रांजैक्शन देख के अपने को समझेगा कि ये ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट क्या भाव पे परचेस हुआ है। बोलो ये ट्रांजैक्शन में क्या भाव पे परचेस हुआ है? बोलो कम इंटरेस्ट, 90 कम इंटरेस्ट बोला है ना, इन्वेस्टमेंट इज परचेस्ड एट 90 कम इंटरेस्ट, तो ब्रोकरेज कम इंटरेस्ट पे आएगा। एक्स इंटरेस्ट बोलेगा तो एक्स इंटरेस्ट पे आएगा, मतलब जो प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है उस पे ब्रोकरेज आएगा। Did you get this? Here you cannot argue that सर इंटरेस्ट पे ब्रोकरेज थोड़ी होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस पे ब्रोकरेज होता है। ट्रांजैक्शन प्राइस कैन बी कम इंटरेस्ट, इट कैन बी एक्स इंटरेस्ट। गया तो गया, ऊपर जाके लिखो किधर, टॉप मार्जिन में दूसरे पेज पे लिखो, वर्किंग बहुत सारे आने वाले हैं, तो डोंट वरी। ब्रोकरेज इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस। Transaction price could be
Transaction price could be cum interest price or x interest price. Clear? अभी मेरे को फाइनली बोलो ब्रोकरेज 2% किस पे कैलकुलेट करें? कम इंटरेस्ट मतलब 21, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट तभी क्या पास किया, पहले ऑलवेज ब्रोकरेज लेने का, तो जो प्राइस रहेगा उस पर ही कैलकुलेट करेंगे, और तो है नहीं अपने पास कुछ। सो 21,600 पे 2% कितना आ रहा है? स्टैम्प एंड एक्सपेंस 20 रुपीज़ है बराबर। अभी मेरे को यस, हाँ बंद करते हैं। थोड़ी देर, एक मिनट पहले इसका आंसर दो। एक मिनट, ये जो प्राइस है कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट? इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा ना। अभी इंटरेस्ट ऑलरेडी ऊपर रिकॉर्ड हुआ है 500। बोलो क्या बोलते हैं इसको? टोटल एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस। टोटल क्यों बोला? क्योंकि एक्सपेंस ऐड हुआ। और एक्स इंटरेस्ट क्यों बोला? क्योंकि इंटरेस्ट माइनस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर? बोलो। नेक्स्ट 31 मार्च को इंटरेस्ट 24,000 ही है अपने पास। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू पे आएगा 24,000, 5% इनटू बोलो 6/12 कितना आ रहा है? Have you understood till this? Next, sold कितना डिबेंचर सेल किया? 100, 1 सितंबर। $10,000 into 5%. How many months? पक्का? लास्ट इंटरेस्ट मार्च में था, अप्रैल, मई, जून,
July, August. How much? Done everybody? फाइन करना पड़ेगा. Calculation of what? Calculation of net X interest selling price and profit or loss on sale is on date बोलो 1st September 22. स्टार्ट कहाँ से करने का? कौन सा क्वेश्चन में प्राइस कौन सा दिया है? X interest selling price. X interest selling price is given 100 into 92. ब्रोकरेज लेस करेंगे ना? कितना आ रहा है? 84 9016 net X interest selling price. यहाँ तक समझा? 9016 will come here. Selling price मिल गया. अभी whenever सेल रिकॉर्ड हो गया, पहले सेल रिकॉर्ड करने का, बाद में प्रॉफिट और लॉस. सेल इज रिकॉर्डेड. नाउ विल गो फॉर प्रॉफिट और लॉस. बोलो प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या कंपेयर करते हैं? बोलो. सेलिंग प्राइस विथ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट फाइंड करना है. बोलो ये 100 यूनिट्स जो सेल किया, कौन से लॉट में से? एक ही लॉट है इधर 240 वाला, बराबर. फीफो फॉलो करेंगे कि वेटेड एवरेज. आंसर सेम ही रहेगा बिकॉज देर इज ओनली वन लॉट. सो 24,000 वाले का
हाउ मच 89 कितना आ रहा है selling price is more so it is profit 36 36 रिकॉर्ड करना है एंट्री बोलो पीएनएल क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा डन एवरीबॉडी क्लियर सितंबर 1 हो गया अभी 30 सितंबर परचेस हो रहा है एट्टी इंटू हाउ मेनी मंथ्स लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ मार्च 6 months इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड कितना आ रहा है 200 स्टार्ट करो कौन सा प्राइस दिया है जो प्राइस दिया वहां से स्टार्ट करना 80 इंटू 91 कितना आ रहा है देखो करें जो प्राइस दिया वहां से स्टार्ट करने का तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया एक्स इंटरेस्ट स्टार्ट करो अब इसमें ब्रोकरेज ऐड करेंगे एंड स्टैम्प चार्जेस ऐड करेंगे बोलो 1 146 करेक्ट है बराबर टोटल टोटल
30 सितंबर परचेज डन। अभी 30 सितंबर को इंटरेस्ट भी है। किस पे आएगा बोलो इंटरेस्ट? आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू। सो 24 प्लस 1 32 माइनस 10 22,000 कितना आ रहा है? क्लियर? मैनेजेबल। 30 सितंबर डन। 1 दिसंबर को क्या आएगा? कितना आ रहा है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो प्राइस दिया है, सो कौन सा प्राइस दिया है इधर? इधर कम इंटरेस्ट दिया है। वी विल स्टार्ट विथ कम इंटरेस्ट प्राइस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कहाँ से स्टार्ट करना है? ट्रांजैक्शन प्राइस से स्टार्ट करने का। हाउ मेनी यूनिट्स? 94 कम इंटरेस्ट। 5 करें? क्या माइनस करूं पहले? वन वन थ्री के 112 पॉइंट समथिंग। माइनस क्या? और क्यों इंटरेस्ट माइनस किया? बिकॉज इट इज कम इंटरेस्ट। 50 रुपीज।
बोलो 54 5477 लिख दो इधर पहले। सेल रिकॉर्ड हो गया, चेक करो। वर्किंग नोट नंबर क्या था? 4 ना। अभी प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो नेट एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस विल बी कंपेयर्ड विथ व्हाट? समझाइए। यहां तक पहुंचे क्या सब लोग? हाउ टू गेट एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट? कोई मेथड बोला है क्या? नहीं बोला है। वी विल फॉलो AS13 वेटेड एवरेज मेथड। डन एवरीबॉडी? अभी साथ में रहना, जोड़े रह जो। $24,000 21,552। एट थाउजेंड नहीं, एक मिनट, ये 36। क्या बोल रहे बेटा? 24,000 का फेस वैल्यू था। ओके, व्हाई डू यू बिलीव फीफो मेथड? हु सेड 10,000 इसमें से बेचा? अरे वो माइनस माइनस करेंगे ना, डेबिट माइनस क्रेडिट। ये था नहीं, अग्रीड, बट डेबिट माइनस क्रेडिट करेगा तो माइनस हो ही जाएगा। सो 24,000 21,552 ये क्लियर है। फिर ये नील और ये 36 क्लियर है। 8,7436। 36 क्यों लिया वो बताता हूँ। 8436 ना। सेवन फोर थ्री सिक्स। ये डेबिट हुआ। अभी चेक करो क्रेडिट में क्या है। सेल है 10,9016 माइनस 10,9016। ये समझा? जो सेल कर दिया वो माइनस करेंगे। सो मेरे पास आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू कितना है? 32 माइनस 10 22 है। 220 डिवेंचर्स है और उसका कॉस्ट कितना है? करो प्लस माइनस। ऐसा? हाँ, अभी मेरे को आंसर दो। इसका इंटरप्रिटेशन चाहिए आपको? ओपनिंग आई कैन से 240 डिबेंचर्स हमने परचेस किए थे, उसका कॉस्ट था 21,552। फिर 80 डिबेंचर्स परचेस किए, उसका कॉस्ट था 7,436। फिर उसमें से 100 डिबेंचर हमने सेल किए, उसका सेलिंग प्राइस 9,016 था, बट हमें कॉस्ट माइनस करना चाहिए।
तो ये 9016 सेलिंग प्राइस है, उसमें 36 रुपए का प्रॉफिट था, 36 का प्रॉफिट था, तो 36 का प्रॉफिट रिवर्स इफेक्ट दे दिया, तो वी विल गेट कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट 8980 था, चेक कर लो। ये पॉइंट समझा क्या? अभी कैसा होता है एग्जाम में बेटा, एक चैप्टर नहीं बहुत सारे हैं, तो हम वेटेड एवरेज कैसे करेंगे? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, तो आपको वेटेड एवरेज मिल जाएगा वो। आप जो बोल रहे थे आई टोटली अग्री कि 24,000 में से 10,000 बेच दिया क्योंकि पहले सेल है बाद में सेकंड परचेज है, बट डेबिट माइनस क्रेडिट करेगा तो हो ही जाएगा ना वो। हम हर सम में मेथड चेंज नहीं कर सकते। अभी कभी कभी ऐसे आएगा, दो परचेज फिर सेल, फिर वापस परचेज फिर वापस सेल, फिर अपन क्या सिस्टम करेंगे? डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, सिंपल। एक मिनट, ये फॉर्मूला में डाउट है क्या? मेरे को आंसर दो। ये 36 क्यों लिया वो समझा? इसका मेरे को कॉस्ट चाहिए, इसका कॉस्ट फाइंड करने के लिए मैंने 36 लिया। डिड यू गेट दिस? पक्का? अभी बोलो कितने वाला बेचा है? 6000 वाला बेचा है, तो कॉस्ट कितना? बोलो। 5457 क्या? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट। सच बोलो, ये समझा है क्या आप लोग को? डबल सेल वाला सम समझा? क्योंकि सिंगल सेल बहुत सिंपल है, सेकेंड टाइम जो सेल आएगा ना उसमें कैलकुलेशन कैसे करना है, दैट यू शुड नो। ये 20 आया, एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इन्वेस्टमेंट के डेबिट में आएगा। बहुत जन को घर पे डाउट आता है, ये अभी नहीं आएगा कि सर प्रॉफिट डेबिट में क्यों लिखा? अरे इन्वेस्टमेंट के डेबिट में लिख रहा है, इन्वेस्टमेंट तो डेबिट ही होएगा ना, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड पे टू, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर क्या है? 4 दिसंबर 1, 20 रुपीज। अगर थर्ड सेल आएगा, थर्ड सेल, तो उसमें 20 कंसिडर होएगा कि नहीं होगा? होएगा। हम डेबिट माइनस क्रेडिट ही करने वाले हैं, तो ये सेलिंग प्राइस लेंगे, उसमें से 20 माइनस कर देंगे। समझा? इन शॉर्ट 5457 लेना चाहिए, बट हम 5477 ले रहे हैं, तो 20 माइनस भी तो करना चाहिए। डिड यू गेट दिस? तीन सेल वाला सम नहीं है अपने पास, डोंट वरी, बट दो सेल वाला इंपॉर्टेंट है, सेकेंड सेल इज इंपॉर्टेंट। इधर तक समझा क्या स्कॉलर्स? अभी क्या बचा है बोलो? सेल रिकॉर्ड हो गया, क्लोज करना है, क्लोजिंग में वैल्यूएशन है। बी विथ मी, जोड़े रहे जो एक एक कॉलम, चार चार लाइन छोड़ देना। 24 प्लस 8, 32,000। करेक्ट? हाँ, अभी मेरे को बोलो, फर्स्ट कॉलम हो गया, समझा सबको? हाँ, अभी सेकेंड कॉलम सोच समझ के आंसर देना। ये 16,000 है ना, इस पे लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था? 30 सितंबर को मिला था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है। डू यू अग्री विद दिस? कितना? 200?
टोटल करो क्रेडिट का। सिक्सटीन 208 टोटल 08 ओके 1608 ऐसा एंड इधर 700 है ना तो 908 किधर जाएगा ये? समझा यहाँ तो अभी थर्ड कॉलम क्लोज करो कॉस्ट कॉलम इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉलम डेबिट का टोटल दो स्कॉलर्स डेबिट का टोटल 2904 बैलेंस लिखना नहीं सिर्फ फाइंड करो लिखना नहीं क्योंकि ये जो बैलेंस है दैट इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। एक मिनट क्या हो गया देख लो इधर बेटा ओके डन लास्ट वर्किंग वैल्यूएशन बोलो किस पे वैल्यू होता है फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर कॉस्ट कितना 14 कहाँ से आया फेयर वैल्यू कितना है हाउ मेनी डिबेंचर्स 160 डिबेंचर्स है ना एंड में डिबेंचर 16,000 फेस वैल्यू है तो वी हैव 160 डिबेंचर्स एट द एंड मार्केट प्राइस कितना दिया है पर डिबेंचर 92 सो 160 इंटू 92 समझाइए कितना आ रहा है सेवन बोलो विच एवर इज क्या लोअर है अगर मार्केट प्राइस लोअर रहता तो वो लिखते तो लॉस आता अगर मार्केट प्राइस कम है तो लॉस होता बट यहाँ पे मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो देर इज अ प्रॉफिट बट इट इज फ्यूचर प्रॉफिट वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज टुडे एज पर कंजर्वेटिज्म
लॉस डेफिनेटली लोअर पे वैल्यू करेगा तो वो कॉलम में डिफरेंस आएगा, विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा ही, नहीं तो टैली कैम करी 14551। बोलो ये क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? क्या नया था इसमें? ब्रोकरेज, बहुत कुछ नया था, करेक्ट। ब्रोकरेज एंड दो सेल था, तो सेकंड सेल कैसे कंसिडर करना है, आई होप यू अंडरस्टूड। भी ये क्वेश्चन है ना, फीफो मेथड से करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दो सम मैंने फीफो वाला रखा, दो वेटेड एवरेज समझा आप लोग को। बाय द वे फीफो वेटेड एवरेज अप्लाई किधर करते हैं? सेल के टाइम पे कॉस्ट फाइंड करने के लिए, सेल के टाइम पे कॉस्ट फाइंड करने के लिए, अग्रीड या? चलो रीड क्वेश्चन 3, थिंक अबाउट इट। एसी बंद कर दो, एसी तो चालू है, इधर बहुत सफोकेट होएगा फिर। स्टार्ट करें? एक काम करो तुम लोग, फॉर्मेट ड्रॉ करो। एक बार मैं फटाफट रीड कर लेता हूँ, सुन लो। मिस्टर हर्ष प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज होल्डिंग इन 10% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू कितना? एक्स लिमिटेड, ओके, हेल्ड एज अ, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। 1 अप्रैल क्या लिखा है? तो अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, बट उसके लिए क्या सोचने का, लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था। सो इंटरेस्ट के डेट्स क्या हैं? 30 जून एंड 31 दिसंबर, तो लास्ट में 31 दिसंबर को हुआ था, तो जैन फेब मार्च 3 महीने का अक्रूड आएगा। उसके बाद परचेस, बोलो मैनेजेबल से, परचेस मैनेजेबल, सेल मैनेजेबल, मार्केट वैल्यू दे दिया है, मतलब दो परचेस, एक ओपनिंग बैलेंस, दो परचेस और एक सेल, दैट्स इट। एंड इंपॉर्टेंट ये है, ओके, ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट क्लियर, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये तुम भूल जाएगा। ब्रोकरेज इज टू बी पेड फॉर, हर ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज कंसिडर करना। मिस्टर हर्ष क्लोज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2019, शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या सॉरी, हाँ अभी फीफो है तो ये 12,500 जो है उसमें से सेल किया रहेगा 12,500, बाकी का जो 1000 डिबेंचर्स हैं वो परचेस में से सेल किया रहेगा। एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वाइटल, समझाइए। तुम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करो। हाँ बेटा, 10%।
Ready? Done. सब में ब्रोकरेज है, किसमें किसमें? परचेस में ब्रोकरेज है, परचेस में ब्रोकरेज है, हुआ यहाँ तक। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018,
12,500. Face value 12,50,000. Do you agree with this? 1225. ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के लिए अलग अकाउंट बनता है. इंटरेस्ट इज ओके. आप कहाँ लिखेंगे? इंटरेस्ट कॉलम में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट कैन नॉट हैव ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस. सो यू कैन नॉट राइट ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट. इसीलिए सेपरेट अकाउंट बनता है ना, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट को लास्ट ईयर आपने इंटरेस्ट आपने लास्ट ईयर क्लोज करके पीएनएल में डाल दिया है ऑलरेडी, तो इसमें बैलेंस नहीं है. अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में बैलेंस है. समझाइए? पूछने का ऐसा कुछ रहेगा. थैंक यू सो मच. April 1 डन. अभी 1 मिनट. कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड है? 1250. 10% कितना आ रहा है? बोलो. ओपनिंग बैलेंस क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, परचेज June 1. $9,000. How many months? ये समझा सबको? लास्ट इंटरेस्ट कभी था? 31 दिसंबर को था. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई. जून नहीं आएगा. कितना आ रहा है? कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा ना. कहाँ से स्टार्ट करने का? जो प्राइस दिया है वहां से. कितना? सॉरी, 882. कितना? ओ, 10 बढ़ गया है. 90.
आएगी? 890820। परचेस हो गया। 30 जून इंटरेस्ट। $12,50,000 प्लस $9,21,50 क्या आएगा? कितना आ रहा है? बोलो। 1 समझा यहाँ तक? व्हाट इज नेक्स्ट? 1 नवंबर परचेज। $12,000 × 100। लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितना आ रहा है? 40,000। 12 लाख पे 10%, 1,20,000। 40,000 वर्किंग टू चार्जर नहीं मिला। उनके पास रहेगा। हाँ लेना, बोलना, सर मांग रहे। कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस बोलो। कितना था? 1200 × 115।
कितना आ रहा है? 13,80,000 करें, ब्रोकरेज ऐड कर दो। ओके, इधर ही करूं माइनस, कम इंटरेस्ट है ना। चेक करो यार, कैलसी लाओ सब लोग नेक्स्ट लेक्चर। कौन कौन नहीं लाया उधर? तीनों नहीं लाए ना? कैलसी लेके आओ। ए तने पण ले आवा नीचे। हाँ, बैग में डाल देना, वापस निकाला था ना तूने। 13,53,800, 13,53,800 हुआ यहाँ तो। चल, 1 नवंबर हो गया, 31 दिसंबर इंटरेस्ट। कहाँ लगाने का? ये नहीं, ये लगा। है फिर ऑफिस में लगा। ये नहीं लगेगा, तो सी पिन नहीं है, नहीं लगेगा। सी पिन लगेगा। हाँ, 1 मिनट हुआ यहाँ तक। इंटरेस्ट हो गया अभी, इंटरेस्ट हो गया। लास्ट पार्ट सोल्ड। पहुंचे सब यहाँ तक? ये बोलो यार, एसी बंद करने का ही नहीं, दोनों एसी है ना पावरफुल रहेगा कल से। यू हैव टू मेक योर ओन प्रोविजंस, समझ जा। क्योंकि कैसा है, ये एसी बंद रहता है ना तो एनर्जी बहुत डाउन होता है। कल से एसी फुल रहेगा, तुम प्रोविजन करके लाने का। ऑनलाइन बैठा ना तो घर से बुलाएंगे उठा के, करें फुल एसी रखेंगे, नहीं तो ये देखा ड्राई हो जाता है सब। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड, ये फुल रखने का, मस्त है एकदम पावरफुल रखेगा। फुल मतलब पावरफुल। सुनो अभी इधर, कश्मीर जा नहीं सकते तो इधर ही कश्मीर बना के हम पढ़ेंगे, करें। डरने का नहीं, इधर कुछ नहीं होएगा, डरने का नहीं। हाँ, वाइब नहीं आएगा, आएगा ना बेटा, थोड़ी देर में आएगा, रुको आएगा। बीच में थोड़ा आवाज चाहिए उड़ाने वाला, तो वाइब आएगा। 1 मिनट, सेल, ये फटाफट कंप्लीट करते हैं। सेल 13, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। 31 Jan, 1 मिनट, इंटरेस्ट बाकी रह गया ना मेरा, मैंने इंटरेस्ट लिखा नहीं। December 31 बाय बैंक, इंटरेस्ट किस पे इंटरेस्ट आएगा? आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू 12,50,000,
प्लस 9 लाख सी पीन है ना, देख रखा है क्या है। सो 12,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख कितना आ रहा है? 3350। 3350 हाँ ऊपर लेके जा। 10 मिनट ही है मेरे पास, मैं भागेगा फटाफट। सी पिन लगेगा, हाँ लग जाएगा। 10% इंटू बोलो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हाफ ईयरली कितना आ रहा है? कम अगेन 167,500। या डन एवरीबॉडी। व्हाट इज नेक्स्ट? 31 जनवरी को सेल हो रहा है। करने नहीं दे रहा है ये भी बोल रहा है सर्कल करो। हाँ ठंडी लग रही है। January 31st by bank account sold हाँ बेटा। ओ बेटा फाइनेंशियल ईयर है, चेक ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का है ना, सो इट इज फाइनेंशियल ईयर। 13,500 हाउ मेनी मंथ्स? सोचने का क्या, फीलिंग से आंसर नहीं होता। लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? 31 दिसंबर, तो वी आर ऑन 31 जैन, तो एक महीने कहीं आएगा ना। कितना आ रहा है? 11,250। यहाँ तक समझा? अभी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, वर्किंग नोट नंबर 3। Calculation of net x interest selling price क्या बोल रहा है बेटा? ओके हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, ये ऊपर ही है। तुम कुछ भी बोलो, मैं सेल करवा के जाएगा बेटा। Calculation of net x interest selling price and profit or loss। स्टार्ट कहाँ से करना? $13,500 into 110 कितना आ रहा है? 15 लाख 14 लाख माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज माइनस होएगा ना 1%, माइनस ये कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे।
कितना था इंटरेस्ट? 11,250। कितना आ रहा है? 900। 1458 900। ओके, यहाँ पर अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि नहीं नहीं, क्लोजिंग क्यों, प्रॉफिट और लॉस बाकी है। प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस विल बी कंपेयर्ड विथ कॉस्ट। कैसे फाइंड करना है? फीफो मेथड अप्लाई किधर करना है वो समझाना बेटा। फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब कॉस्ट फॉर्मूले हैं। मेरे साथ रहना। पहले मेरे को एक आंसर दो, कितना यूनिट सेल किया? कितना यूनिट सेल किया? 13,500 सेल किया। कौन से लॉट में से सेल किया? ओपनिंग लॉट में से सेल किया। 13,500 में से 12,500 तो यही वाला बेचा है हमने। ओके, इसका कॉस्ट कितना था? और लॉट 2 में से भी बेचा हमने। अभी मेरे को बोलो, लॉट 2 9 लाख एंड 8,908,20 था। एट 209। बराबर है। अभी मेरे को सोच समझ के आंसर देना। टोटल डिबेंचर कितना सेल किया? 13,500। उसमें से लॉट 1 में कितना सेल किया? 12,500। बराबर है, करेक्ट। ये कौन से वाले हैं? ओपनिंग वाले। ये कौन से वाले हैं? परचेस वाले। अभी इसमें से कितना बेचा रहेगा? सो 9,000 का कॉस्ट इतना था, तो 1,000 डिबेंचर का कॉस्ट कितना? ये समझा कि नहीं समझा? डाउट है इसमें? कितना आ रहा है? 9। अरे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
9,08,98,20 था, 1 लाख का कितना, सो 98,980, एंड ये लॉट ऑलरेडी हमने सेल कर दिया, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाए। ये समझा कि नहीं समझा? कितना आ रहा है? डाउट है? समझा? 13,500 डिबेंचर, लॉट 1 तो पूरा बेच दिया ना हमने, तो लॉट 1 का कॉस्ट इतना था, लॉट 2 में से 9,000 का कॉस्ट इतना था, 1000 का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, कितना आ रहा है? कम अगेन 1, ये समझा? वन 34,920 क्या कंप्लीट किया? सेल कंप्लीट किया। अभी इसका क्लोजिंग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 था ना कि 3 था? क्यों क्लोजिंग नेक्स्ट लेक्चर करते हैं? क्योंकि एक पॉइंट मुझे उधर एक्सप्लेन करना है रिलेटेड टू ब्रोकरेज। सो याद रखना, what is pending here, closing is pending, we will consider closing in next lecture। अभी ये सोल्यूशन मेरे पास नहीं रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, मैं डायरेक्टली फिगर्स बताएगा, चाहिए तो फेस वैल्यू कॉलम क्लोज कर दो, अक्रूड इंटरेस्ट करके इंटरेस्ट क्लोज कर दो, सिर्फ मेरे को वैल्यूएशन का प्रिंसिपल पे बात करना है, करेक्ट? सो याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट। सो मच, बाय, टेक केयर। आई होप समझा आपको।